گجرانوالہ کے قاری عبداللہ سلمان نے قطر میں ہونے والا بین الاقوامی حسن قرات مقابلہ جیت لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 12 سال ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کب سے آپ مطلب حفظ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے شوق تھا تلاوت کا، حفظ سے پہلے ہی شوق تھا یا بعد میں بڑھا ہے؟ 7 سال کی عمر میں نے حفظ شروع کیا تھا، 9 سال کی عمر میں مکمل کیا تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد قریباً 1 سال سے میں نے شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان لیول پہ کتنے مقابلے جیت چکے ہیں آپ؟ تقریباً 19 سے 20 مقابلہ جات پاکستان میں، ضلع لیول پر، صوبائی لیول پر، گجرانوالہ میں ایک مقابلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان میں مقابلہ جات۔ اچھا، اب جو ایشیا میں آپ نے جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دوم پوزیشن جو ہے وہ آل ورلڈ میں آپ کی آئی ہے، پوری دنیا میں، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میرے بابا جان کی محنت تھی، اپنی بھی محنت تھی، سب کی دعائیں تھی۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ پہلی بار سفر تھا، نہیں اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی کامیابی سے نوازے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، اس بات پر بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا ٹوٹل کتنے لوگ تھے وہاں پہ جو کہ مقابلے میں حصہ جنہوں نے لیا تھا؟ تقریباً 10 ممالک سے 16 بچے تھے، 16 میں سے انہوں نے 8 بچے نکالے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 5 نکالے، وہ 5 پوزیشن ہولڈر تھے۔ قرآن پاکی کی سورت کی تلاوت کی تھی وہاں؟ سورۃ حامیم سجدہ۔ اچھا، آپ کے اساتذہ اکرام، آپ کے والدین، آپ کے جو والد محترم ہیں وہی آپ کے استاد ہیں حفظ میں بھی؟ جی کہ رات بھی انہوں نے سکھائی ہے؟ جی، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ انہی کے جامعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یعنی کہ آپ کا اپنا جامعہ ہوا نا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، کیا نام ہے جامعہ کا؟ الفلک اسلامک سینٹر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے پورے گجرانوالہ کے لیے سب سے پہلے، اور پھر پورے پاکستان کے لیے، پھر پوری دنیا میں آپ کا ماشاءاللہ بڑا نام روشن ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے والدین کے لیے بالخصوص کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی موقع دے۔ ایج لمٹ کیا تھی؟ ایج لمٹ قریباً 16 سال تھی۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ کوثر۔ سورت کوثر کی تلاوت کر کے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔
माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है। क्या आवाज़ अच्छी करने के लिए कुछ खाते हैं आप? दुकान की सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, खाने में परहेज़ करना पड़ता है, बाकी आवाज़ तो अल्लाह की देन होती है एक। ये फ़ास्ट फूड बॉटल वग़ैरह इस तरह की खट्टी-मीठी चीज़ें? नहीं, ये सब बंद। अच्छा, ये सब बंद है। अच्छा कारी साहब, पाकिस्तान लेवल पे मुकाबला जात होते हैं, तो क्या वहाँ से अब्दुल्ला साहिब का पता चला या आपने जो है वो खुद अप्लाई किया है कहीं पे मुकाबला जात हो रहे हैं, और ये कैसे आपने जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन ली और फिर कारी साहब उधर गए और तिलावत की? जो पाकिस्तान लेवल के कंपटीशन होते हैं वो औकाफ के ज़ेर एहतमाम, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसने टॉप किया था। लेकिन वो जो नेशनल पोजीशन होल्डर होता है, नेशनल चैम्पियन, वो गवर्नमेंट ही जब उनकी तरफ कोई इनविटेशन आता है बाहर की हुकूमतों से, तो वो अपनी तरफ से फिर भेजते हैं। ये जो मुसाबका तेजान नूर के नाम से कतर में होता है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। वर्ल्ड वाइड कुरानिक कंपटीशन के नाम से एक पेज है, वहाँ से ये सारी मालूमात मिलती हैं। ठीक है। 1-2 साल से हम तलाश में थे, तो अल्लाह ने मौका दिया, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे कामयाबियों का सिलसिला जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये बड़े एज़ाज़ की बात है। आज कल आप देख रहे हैं अल्लाह ताला सबकी औलाद को जो है वो नेक बनाए, और ये आपके लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आजकल के लड़के जो है वो आप देख रहे हैं जैसे कि आवर सोसाइटी में हो रहा है, और आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया, और कुरान पाक की तिलावत में, अल्लाह के ज़िक्र में। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है ये, इसमें कोई कमाल नहीं हमारा, ये अल्लाह की अता होती है। और मैं दुआ भी है कि अल्लाह सबको ऐसी अता करे, लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान को कुछ इख्तियारात दिए हैं। बहुत सारे जो है ना वो इंसान के ज़िम्मे काम होते हैं, उसके बाद अल्लाह कामयाबियाँ देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन बाप और उस्ताद, चूँकि अल्लाह ने दोनों एजाज़ दिए मुझे, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस लायक नहीं था, लेकिन अल्लाह ने बहुत फजल कर दिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, जब वहाँ पे मुकाबला हुआ है और अब्दुल्ला साहब का नाम अनाउंस हुआ है, तो आपकी क्या तब जो है वो फीलिंग्स क्या थी आपकी? मुझे सजदे के अलावा कुछ नहीं सोचा कि मैंने फ़ौरन सजदा किया, सजदा शुक्र जिसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आदत है हर कामयाबी के जब पता चलता है तो उसमें फ़ौरन सजदा शुक्र करता हूँ। यहाँ 2 कंपटीशन होते हैं, यानी एक ही कंपटीशन की 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी होती है हिफ्ज़ुल कुरान की, मुकम्मल कुरान का इम्तिहान होता है, और एक हुस्न तिलावत की होती है। तो जो हिफ्ज़ुल कुरान का इम्तिहान था कंपटीशन, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद आपके इल्म में नहीं आई होगी बात। तो सेकंड पोजीशन उसने क़िराअत में। तो ये अल्लाह का देखें फ़ज़ल पे फ़ज़ल, ये हिस्ट्री में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा है। एक ही कंपटीशन की 2 कैटेगरीज में फर्स्ट सेकंड पोजीशन आज तक नहीं हुआ ऐसा। बड़े एजाज़ की बात है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में कारी अब्दुल्ला साहब की आवाज़ जो है वो गूंज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वकार भाई असल में पहलवानी के साथ साथ हमारा शहर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम पैदा हुए हैं, हम होश संभाली है, मजहबी शहर भी माना जाता है। ठीक है। दीनी रुझान भी बहुत है, ठीक है। मदारिस बहुत हैं, जामियात बहुत हैं, तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये हमारे लिए फ़ख्र है गुजरांवाला के लिए। अब ये मेरे खाली अकेले के लिए नहीं, गुजरांवाला अहले मदारस, अहले कुरान और पाकिस्तान के लिए यकीनन सब के लिए एजाज़ है। सिर्फ इसको समझने और फील करने की बात है। गुजरांवाला की जितनी भी आवाम है आपके शहर की, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पूरे पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि वो भी अल्लाह ताला के कुरान मजीद के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह ताला के दीन के साथ जुड़ जाएं, दुनियादारी को छोड़ दें। आखिरत में दुनियादारी काम नहीं आनी, कुरान मजीद काम आएगा। कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दें, उसे सीखें, उसे समझें, इसी तरह के सब मसाइल समझें। कारी साहब, ये इतनी अच्छी बातें, इतनी कम एज में और इतनी बड़ी बातें, ये क्या पहले आपने वो ट्रेनिंग करवाई है इनकी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब से इन्होंने होश संभाला इसी माहौल में, तो लेक्चर सुनते रहते हैं, दुरूस सुनते रहते हैं, मैं खुद भी लेक्चर देता रहता हूँ। ये अगर कोई ऐसी मिसाल के तौर पे, वो तो आप लोग तजर्बाकार हैं कि जब एक बात सिखाई जाए तो उसमें कितनी पावर होती है, और जो खुद बोल रहा होता है बच्चा, तो उसमें तो ये फ़र्क होता है। जो अपने दिल से बोल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि चलें अल्लाह ने इसके दिल में ये जज्बात रखे हैं। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि मज़ीद ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें और बाकी बच्चे भी करें। आप तो वालिद मोहतरम हैं और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इसके अलावा भी ऐसे कुछ अहबाब हैं, चाहे वो अब्दुल्ला की वालिदा मोहतरमा हैं या अब्दुल्ला के उस्ताज़ा हैं या अब्दुल्ला के दोस्त हैं या आपके दोस्त हैं, कोई ऐसे अहबाब जिनको क्रेडिट आप देना चाहें? सरफरस्त जो नाम है वो कारी फ़ाहद शाह साहब हैं, बनू साइड के हैं।
بڑی زبردست رہنمائی کی اور یقیناً پورا ساتھ دیا. ہمارا قطر میں بھی تھے تو ہمارا بیک اپ کر رہے تھے, ہر جگہ ان سے رہنمائی لے رہے تھے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں قاری خباب ارکم صاحب ہیں, انتہائی قابل استاد ہیں, ان سے بھی الحمدللہ اس نے تلاوت سیکھی اور ان کے اسلوب کے مطابق وہاں پڑھی بھی. اسی طرح قاری عبدالقدوس عباس کے نام سے اسلام آباد میں, انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس کو تلاوت سکھائی, چاہے ایک دفعہ یا 2 دفعہ سکھائی ہے. میں ان کو مکمل طور پہ جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے ہی یہ کامیاب ہوا اللہ کے فضل کے بعد. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.